Hello students, welcome back to our channel KCYC. Let us continue with the same chapter sets. So in this video we will be doing the same chapter, that is sets, but with the exercise 1.3. So let's start with the exercise 1.3 in your algebra chapter number 1 sets. Exercise 1.3 करने के पहले you need to understand three things. एक होता है subset, the other one that is known as Venn diagram, and the next one is known as a complement of a set. सबसे पहला, what do you mean by a subset? What do you mean by a subset? और subset का sign है ना, ऐसा होता है, ये ऐसा. This is called as subset. Suppose आपके पास एक term है, that is A is equal to 1, 2, 3, 5, 4 and 6. And suppose if you say why B is equal to 2, 4 and 5. And C is equal to, suppose this is 4 and 5. Abhi, what do you mean by a subset? Now if you check with A, B and C, so if you check over here, ये जो B का terms है ना 2, 4, 5, ये 2, 4 और 5, ये जो B का terms है ना वो A के अंदर है, so we say that is B is a subset of A. मतलब अगर इधर का terms इधर है, मतलब इधर का टर्म्स पूरा इधर है, तो we say B is a subset of A. A is not a subset of B because यहाँ पे तो 6 टर्म्स है और यहाँ पे 3 है, तो इसका टर्म्स इधर नहीं है. फिर ये C दिख रहा है, ये C का टर्म्स 4 और 5 ये इधर है, तो we say C is a subset of, what is it, C is a subset of, what is that, B. As well as ये जो दोनों टर्म्स है ये इधर भी है, तो again we say C is a subset of A. So this is called as subset. तो ये subset का sign है. तो पहला वाले का टर्म्स अगर दूसरे में है तो we call in this chapter it is called as a subset. B का फर्स्ट सम करेगा, उसमें सबसेट है. We check your question. तो A is equal to A B C D E, A B C D E ऐसे ही दिया हुआ है. Sequence is not important. Past terms था, past term आपने लिखा काफी है. Then you see where B is equal to, you get over C, D, E and this is F. Then you get over C, this is equal to D and B, or you can write over B and D. Then you get over D is equal to, this is A and this is E. फिर questions पूछा हुआ है that which of the following statements are true and false. पहला question I'll write with other pen. पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, what they asked with their first question, that is whether C is a subset of B. मैं बाद में true और false लिखूंगा. Then A is a subset of D, D is a subset of B, then you got over D is a subset of A, and then you got over B is a subset of A, and then you got over this is C is a subset of A. It's very simple. आपको क्या करने का है, अगर पहला वाला पूछे C is a subset of B, मतलब जो भी C का टर्म्स है ये DB, that should be present over. इधर D है लेकिन B नहीं है, तो this is false. Then बोला A is a subset of D, A is a subset of D, बड़ा वाला this is बड़ा because यहाँ पे 5 टर्म्स है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो you cannot have a big one to be a subset of a small one. तो डायरेक्ट बोल दो आप this is false, चेक करने का भी जरूरत नहीं है. D is a subset of B, ये D है ना, is it a subset of B? तो D में ये D लिखा है, तो D में क्या टर्म्स है, A और E. Whether that it is there in this A और E, ना, सिर्फ E है, A नहीं है. दोनों का जितना भी है सब मैच होना चाहिए, that is false. Then D is a subset of A. So this D, whether it is a subset of A, इसमें टर्म है A और E, the same term is over here, A and E है. So this one is true. Then again B, is it a subset of A? B, is it a subset of A? C, C, D, D, E, E. F ने मैच हो गया. So this is false. Then last one C, ये C है. Is it a subset of A? D, D, B, B, matching. So this is true. मतलब basically फर्स्ट वाले का सब टर्म्स सेकंड में होना चाहिए, then you can call it as a subset. एक भी मिसमैच हो गया तो it is not a subset. So this is how you have to do the first sum. Second one. Now this is very important. बहुत easy भी है लेकिन कैसा करने का. Take a set natural number from 1 to 20 as universal set. तो universal set को बोलते हैं U. It's compulsory capital U ही लिखने का. This is 1, 2, 3, 4, 5 पूरा 20 तक, 8, 9, 10, I'll write over here, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19 and this is 20. एन ऑफ कुछ नहीं लिख रहा, तो ये यूनिवर्सल सेट है, मतलब इससे जो छोटा छोटा सेट्स आएगा ना वो 1 to 20 के बीच में ही रहेगा. देन यू चेक योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट दे गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ यू चेक द फर्स्ट क्वेश्चन, x is a set of small x such that x, इसको बोलते हैं belongs to, n बोलेगा तो नेचुरल नंबर. लास्ट वीडियो में बोला था ये कैसा पढ़ने का रहता है, ये बीच में से पढ़ने का. x is greater than 7, less than 15, और एकदम सिंपल 7 और 15 का सब बीच में का टर्म्स चाहिए. तो टेल ऑल टर्म्स जो 7 और 15 के बीच में और जो इधर होना चाहिए, बट सो इट इज 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड यू हैव टू फिनिश विद 14. 15 नहीं लेना है. इसका वेन डायग्राम बनाने का आई शो यू लेटर ऑन. तो सेकेंड वन देखो यहाँ पे क्या बोला है, y is a set of, चेक करो आपको टेक्स्ट बुक्स में क्या है, y is a set of y such that, वापस बोला y belongs to natural number and y is prime number, it is a prime number from 1 to 20. तो you need to write all the prime numbers from 1 to 20, so that is 2, 3, 5, 7, ये भी बताया था आपको, 11, 13, 17, 19. These are your prime numbers. तो आप लोगों ने दिया था सेट बिल्डर या रूल फॉर्म में, आपने उसको लिस्टिंग में कन्वर्ट किया. ये भी सेट बिल्डर और आपने इसको लिस्टिंग में कन्वर्ट किया. पूछा क्या है वो देखो अभी. नाउ व्हाट हैव दे आस्क्ड, that is take the sets from 1 to 20 as universal set and show set x and y using Venn diagram. अभी आपको Venn diagram ड्रॉ करके ये बताने का, एकदम सिंपल. You can draw, this is a box over here, this is your universal set, इसके अंदर एक सर्कल बनाओ and this is your x. अब x में क्या क्या टर्म्स है, that is you have to write, यहाँ पे कैसा भी लिखो बट सर्कल के अंदर. This is 10, 11, 12, 13 and this is 14. और टोटली कितना टर्म्स है, 20. जो अंदर लिखा है उसको छोड़ के जितना भी टर्म्स है वो सर्कल के बाहर और बॉक्स के अंदर. दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 is already written. This is 15, 16, 17, 18, 19 and 20. So this is your representation for the first one. Second भी ऐसे ही बनाओ, यहाँ पे बॉक्स बनाओ. आपको चाहिए तो ट्राइंगल भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस. दिस इज सर्कल ओवर हियर, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज y, वी कैन राइट दिस इज 2, दिस इज 3, 5, 7, सेम ये सब अंदर आएगा. दिस इज 11, 13, 17, 19 और बाकी का टर्म्स बाहर. 1, 2, 3 is already there, 4, 5, ये नंबर्स यू कैन राइट, 5 is already there, ये नंबर्स यू कैन राइट anywhere. 6, 7 is already there, 8, 9, 10, 11 is already there, 12, 13 is there, 14, 15, 16, 17 already there, 18 and 20. So this representation what you do, ये जो diagram draw किया ना ये वाला, this is called as a Venn diagram. So this is how you have to do the second sum. क्या लिखा है, U, again I repeat, U मतलब universal set. They already given 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is what they given. P भी दिया हुआ है. P बोलेगा तो 1, 3, 7 और ये है 10. फिर बोला show that U, P और P dash will draw over here. Now what is U, P and P dash is this one. Now what is complement बोलेगा तो अगर सपोज ये स्कूल है और स्कूल में ये सर्कल है और ये सर्कल में अगर बॉयज खड़ा है तो सर्कल के बाहर कौन खड़ा रहेगा, तो कॉमन सेंस है तो सर्कल के बाहर कौन खड़ा रहेगा, दैट इज गर्ल्स. और बॉयज और गर्ल्स को मिलाएगा तो पूरा आपका डिवीजन बनता है. द सेम थिंग ओवर हियर, ये डिवीजन समझो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 जन ये बॉक्स के अंदर आने चाहिए, दैट इज यू. देन व्हाट यू गेट ओवर हियर, ये पी. पी मतलब ये दिस इज व्हाट यू गेट ओवर हियर, पी. सो यू कौन है यहाँ पे लिख दो, बाहर तो भी चलेगा. दिस इज व्हाट इज दैट पी, मतलब ये पी में कौन आएगा, दिस इज 1, ये जो दिया हुआ है, दिस इज 3, दिस इज 7 एंड दिस इज 10. और ये जो बाहर है ना, अगर ये P है तो ये बाहर वाला है, दैट इज P डैश. एंड P डैश का मतलब होता है P कॉम्प्लीमेंट. तो टोटली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 था. 9 में का 4 आपने लिखा, जो बचा हुआ रहता है दैट इज 2. Then what you get over here, 3 is already written, 7 is already written, 8. Then you get over this is 9
this is 11 and this is 12. So it 1 2 3 4 5, that is 2 8 9 11 12. This is called as p complement. फिर और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, verify p, that is we need to verify p complement, the whole complement is equal to p. Now this I showed you with Venn diagram. This will confirm without Venn diagram. Now what is this? पहले ये निकालो LHS. क्या बोला है LHS? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट, ये फाइंड आउट करने का है. तो फर्स्ट वी स्टार्ट ओवर हियर, वी से दिस इज सिंस P कॉम्प्लीमेंट. नाउ व्हाट इज P कॉम्प्लीमेंट? ये क्वेश्चन पे आ जाओ वापस. ये P है, ये यूनिवर्सल सेट है. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है. उसमें का ये जो 4 टर्म्स है ये P है. P कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो P को छोड़ के ये 4, अभी इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो P को छोड़ के जितना टर्म्स है बाकी का 5, दिस इज 1 3 7 10 को छोड़ो, 1 को छोड़ो, 3 7 और 10, ये चारों टर्म्स को छोड़ेगा तो रेस्ट टर्म्स व्हाट इज दैट? दैट इज योर 2 8 9 11 12. दिस इज योर P कॉम्प्लीमेंट. बट पूछा क्या है? P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये जो P कॉम्प्लीमेंट है ना, इसको जाने का वापस यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करने का. तो P कॉम्प्लीमेंट में ये 5 टर्म है, जाके यूनिवर्सल सेट के साथ कंपेयर करने का. यूनिवर्सल सेट्स में कितना टर्म्स था? 8 में का ये 5 गया, तो इसका बचा हुआ 3 टर्म्स, बिकॉज इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है. पहले इसका पूछा था, अभी इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है. तो ये 5 छोड़ के बाकी का 3 टर्म्स लिखने का. दैट इज 1, 3 और 7 और एक आएगा, दिस इज 10. 1 2 आई थिंक दिस आर 9 टर्म्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, या 9 टर्म्स है. सो यहाँ पे P में कितना टर्म्स था? दैट इज P में 1 2 3 4 टर्म्स था. 1 2 3 4, दैट्स व्हाई वी रोट ओवर दिस इज 5 टर्म्स. अभी यहाँ पे 5 टर्म्स है, तो इसका उल्टा, तो ये बचा हुआ 4 टर्म्स. एंड चेक 1 3 7 10 इज नथिंग बट दैट इज P. तो वी कैन से दैट इज सिंस P, you can write this as 1 and we can say that is P is also 1 3 7 and 10. This is number 2 and therefore we can say that is from 1 and 2 we say P complement, the whole complement is equal to P. और बस और एक बार आपको बताता हूँ एकदम सिंपल इसमें कैसा करेगा. The first one, this is what we are drawn is with Venn diagram. This question is totally different. तो complement was over here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स था. P में कितना टर्म्स है? 4. You have to show that is by Venn diagram. तो ये सर्कल बनाया, तो जो 4 टर्म्स था we wrote over 1 2 3 and this is 4. और जो बाहर लिखा दैट इज योर कॉम्प्लीमेंट. सो इधर मैंने P लिखा और यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट लिखा. फिर वेरीफाई के लिए सेम क्वेश्चन वाज दिस ओनली, यही क्वेश्चन था. तो वी हैव टू शो P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट. तो फर्स्ट वी गॉट P कॉम्प्लीमेंट. सो जो P था ये 4 टर्म्स है, इधर कितना टर्म्स है? 9. तो ये 4 को छोड़ के बाकी का 5 लिखा, 1 2 3 4 5, दैट इज योर P कॉम्प्लीमेंट. फिर ये जो P कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये 5 छोड़ेगा वापस यूनिवर्सल सेट के साथ जाने का. ये 9 में का 5 छोड़ेगा, जो बचा हुआ 4 लिखा, दैट इज व्हाट वी गेट ओवर हियर. तो दिस इज व्हाट वी गेट इज P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट. और P भी वही है एंड देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम 1 and 2. अगर राइट हैंड साइड सेम है तो ये भी सेम होता है, देयरफॉर वी से P कॉम्प्लीमेंट द होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू P. 1 3 2 and 7. फिर क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A. तो इसका कोई भी 3 सबसेट लिखो. मतलब बेसिकली इसमें 4 है ना, आपको ऐसा लिखने का सेट जो इससे छोटा होना चाहिए. तो वी कैन से दैट इज द, बहुत सारा लिख सकता है, द सबसेट ऑफ A कैन बी, आई राइट ओवर हियर, कैन बी पहले ये लिखो, यू राइट 1, बस एक ही टर्म 1, या और एक लिखो दैट इज 3, या 2 टर्म्स लिखो, कर्ली ब्रैकेट्स कंपल्सरी, दैट इज 1 and 3, और you can write over 1 3 and 2, बस हो गया. 4 लिखा दे, मतलब दिस 1 इट इज ओवर हियर, ये 2 है, सॉरी 3 है, इट इज ओवर हियर. 1 3 ओवर हियर, 1 3 2 1 3 2 है. और भी लिख सकते हैं, 3 2 7 लिखो, 3 1 2 लिखो, 7 2 3 लिखो. तो जितना चाहिए उतना लिख सकते हैं. तो दैट इजी. Let's see with your next one, the sum number 5. Now what you got over with sum number 5 में क्या लिखा हुआ है? Write the subset relation between the sets. मैं शॉर्ट में लिखता हूँ P. This is for Pune. Then we get over M. This is for Madhya Pradesh. Then we get over I. This is Indore. I'm just writing in shortcut. Textbooks में लिखा रहेगा. B. This is for
India, and then we get over here that is H. This is for Maharashtra. ठीक है. नाउ आपको पहला बोलने का राइट कि इनका रिलेशंस क्या है. पहला फर्स्ट क्वेश्चन, इनका रिलेशन क्या है. नाउ स्टार्ट विथ पूना. पूना मध्य प्रदेश में आता है? नहीं. पूना इंदौर में आता है? नहीं. पूना इंडिया में आता है? यस. सो यू से P इज अ सबसेट ऑफ B. ये अल्फाबेट्स लेने का. फिर पूना महाराष्ट्र में आता है? यस. सो वी से P इज अ सबसेट ऑफ H. ऐसा. अभी मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश पूना में है? नहीं. मध्य प्रदेश इंदौर में है? नहीं. मध्य प्रदेश इंडिया में है? यस. सो यू से दिस इज M इज अ सबसेट ऑफ B. इज मध्य प्रदेश इन महाराष्ट्र? नो. तो गॉन. इंदौर. Indore, is it in Pune? No. Indore, is it in Madhya Pradesh? Yes. So we say I is a subset of M. Then Indore, is it in India? Yes. I'll put it over here. I is a subset of B. Indore, is it in Maharashtra? नहीं. तो this is subset. मतलब छोटा वाला बड़े वाले के अंदर चले जाते हैं. इंडिया भी आ जाओ. इंडिया किसका है? इंदौर का सबसेट है. इंडिया इंदौर में आता है या इंदौर इंडिया में आता है? India does not come in Indore, तो India is not a subset of Indore. India is not a subset of MP. India is not a subset of Pune. India is not a subset of Maharashtra because इधर जो 5 ये जो states और district दिया उसमें India एक ये what you can say this is the name of like अपना country का नाम है. तो you can't have India can be a subset of any state or district. Then India किधर है? महाराष्ट्र. Maharashtra comes in where? India. So this is H is a subset of B. नाउ इसमें सबसे बड़ा कौन है? आवर कंट्री, दैट इज दिस इंडिया इज, मतलब बड़ा कैसा है? नॉट इन साइज बिकॉज ये स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स है तो इंडिया सबसे बड़ा है. तो जो इंडिया सबसे बड़ा है बिकॉज ये सब इंडिया में आता है. सो सेकंड क्वेश्चन वही पूछा है. तो इसमें का किसको यूनिवर्सल सेट बोलेगा? तो वी कैन से इंडिया इज योर यूनिवर्सल सेट. दिस इज व्हाट वी डू. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. ऐसा सपोज बाई चांस ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ही खत्म हो गया. सपोज एग्जाम में आपको यही नहीं दिया, इंडिया निकाल दिया यहाँ से कि रिका ही नहीं, तो फिर आपका यूनिवर्सल सेट कौन सा हो गया? फिर इंडिया के बाद किसका नंबर लगता है? दैट इज यू डू नॉट हैव एनीथिंग ओवर एज सच यूनिवर्सल सेट बिकॉज महाराष्ट्र दिस इज ऑल्सो अ स्टेट एंड ओवर मध्य प्रदेश दिस इज ऑल्सो अ स्टेट. तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा. या लाइक सपोज इसमें और एक एक्स्ट्रा डाल दिया. सपोज उन्होंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डाल दिया, सपोज बी डाल दिया और इसके जगह पे यहाँ पे लिखा एशिया. हाँ, नाउ व्हाट यू कैन से ये सबसे बड़ा कौन है? दैट इज एशिया. तो ये इंडिया चेंज हो जाएगा और यहाँ पे एशिया आएगा. बट एज सच आपके टेक्स्ट बुक्स में क्या लिखा हुआ है? दिस इज इंडिया. सो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू योर सम नंबर 5. नाउ सम नंबर 6 में क्या बोला है? ए सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5. तो मैं दिस इज ए is a set of multiple of 5. उसको लिस्टिंग मेथड में कन्वर्ट करेगा. दैट इज 5, 10, 15, 20, 25 मतलब 5 का टेबल एंड दिस इज इनफाइनाइट, आगे तक जाएगा. P बोला हुआ है सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, 7, 14, 28, 35 या ऐसा इधर तक चलेगा. एंड देन बोले C a multiple of 12. दैट इज यू से मल्टीपल ऑफ 12, 12 1 जा, 12 2 जा, 12 3 जा, 12 4 जा, 12 5 जा और ये ऐसा. अभी what they asked, which of the following could be the universal set of the sets given below. तो इसका universal set कौन सा होगा? If we check over here, यहाँ पे ये सब natural numbers भी है, whole numbers भी है, integers भी है. So we can say over therefore the universal set कौन सा भी लेगा तो भी चलेगा. यूनिवर्सल सेट कैन बी, लेकिन उसमें इन लोग तो आना ही चाहिए और एक्स्ट्रा आएगा तो भी चलेगा. कैन बी दैट इज n इज योर नेचुरल नंबर और यू कैन टेक w और यू कैन टेक i. दिस इज नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट चलेगा. होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 6 वो भी चलेगा या इंटीजर्स नेगेटिव पॉजिटिव और 0 भी चलेगा. तो इसका यूनिवर्सल सेट कैन बी नेचुरल, होल और इंटीजर्स. नेक्स्ट भी वैसा ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो P द सेट ऑफ इंटीजर्स which are multiple of 4. So you need to write all the multiple of 4. That is 4, 8, 12, 16, 20. Same वैसा ही है. And then you get over the next T set of all even square numbers. Set of all even square number. That is 2 square, 4 square. Then what you get over 6 square.
then you get over that is 8 square. This is what you get. All वही same आ गया. So what will be the universal set? Therefore इसका universal set can be same. You can say n, w और I same आ जाएगा. It is that simple. मतलब इसका universal set again natural numbers, whole numbers या integers. Now the last one. Let seventh one, let the student of a class be a universal set. मतलब U is, that is what they are given. U is the set of a student in a class. U is a universal set of the students in your class. तो जितना आपके क्लास में सबका नाम इधर लिख दिया, ठीक है. फिर क्या बोला? A, that is student who scored that is more than 50%. Who scored that is more than, what do you get over here? That is 50%. Now बोलो इसका A कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? आप लोग थोड़ा सोचो और बोलो. What will be the A कॉम्प्लीमेंट? दो ही टाइप का बच्चा लोग रहेगा, जिसने 50 से ज्यादा स्कोर किया है और जिसने 50 से कम स्कोर किया है. इनको मतलब जिसने 50 से ज्यादा स्कोर किया, 50 से कम स्कोर किया, इसको मिलाएगा. दैट इज योर यूनिवर्सल सेट. ए बोलेगा तो ये मतलब जिसने 50 से ज्यादा स्कोर किया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो क्या? दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट विल बी स्टूडेंट हु स्कोर्ड दैट इज लेस देन 50%. So this is how we have to do this. So ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ाई किया? You have to revise. It's very important. Subset. Then you got over this is a Venn diagram, and then you got over a complement of a set. Hope you understood with this exercise. Next exercise is very important, which we'll do in the next video. So we finished with this video over here with this exercise. Meet you in the next video. Bye bye. Tata.